students, welcome back to the channel with the new chapter of class 3rd science, chapter number 9, that is about measurement. So students, today we will learn that how could we measure the different quantities. See students, in the ancient time period, यानी कि पहले time पर लोग क्या करते थे, the people used to measure the things with the help of stone. Alright, they used to count anything with the help of stone, fingers, or with the help of their different body parts. So basically उस time पर कोई एक proper एक accurate devices या units नहीं होती थी to measure any quantity. Alright, but now we have a standard unit for every typical quantity to be measured. So in this session we will learn the measurement of length, measurement of weight, capacity, time, and also we will learn the measurement of temperature. All right? So first of all, what do you have to do? You have to tick the taller object. यहाँ पे आपको दो object given है. आपको taller यानी कि जो ज़्यादा tall लंबा है उस object को tick करना है. So you can see this is giraffe and this is zebra. So both among between these two objects, the taller one is giraffe. So we will tick on giraffe. All right. Secondly, over here you have to circle the heavier animal. जो heavy animal है उसको आपको circle करना है. It's a rabbit and it's an elephant. So comparatively, elephant is heavier animal. So we will circle it. Third, tick the object that gives a louder sound. अब इनमें से कौन सा object है जो ज़्यादा loud sound produce करता है, हमें उसको tick करना है. So you can see this is a mobile phone and this is the radio. ठीक है? And इनमें से louder sound कौन produce करेगा? Radio. So we'll pick it correct. Then next, tick the object which is longer. अब इनमें से कौन सा object है जो ज़्यादा long होता है? So you can see this is a ruler and it's a measuring tape. ठीक है? तो ruler and measuring tape में से जो ज़्यादा longer object है, that is measuring tape. So we will again tick it correct. All right? चलो. Now, we need to measure different things in our life and we want to know the distance of one place to another, the quantity of a thing, the height of a person and the length of a cloth, etc. What they say कि हमें अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे डिफरेंट थिंग्स को मेजर करना पड़ता है. जैसे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट वी वांट टू नो. ठीक है. उसके बाद किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग की क्वांटिटी को जानना है, पर्सन की हाइट जाननी है, एक क्लोथ है उसकी लेंथ को आप जानना चाहते हो. सो लाइक दिस वी हैव डिफरेंट थिंग्स टू मेजर इन अवर डेली लाइफ. ठीक है. सो ऑफन वी यूज वर्ड्स. उसके साथ साथ आप बहुत ऑफनली इन वर्ड्स को यूज करते हो, जैसे कि लॉन्गर, शॉर्टर, हेवियर, लाइटर, मोर, लेस. ठीक है. इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए इन अवर डेली लाइफ. And to find out exactly how long a thing is or how heavy a thing is, we would need to measure it. And exactly अगर आपको measure करना है कि वो चीज़ कितनी heavy है, long है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसे accurately measure करना पड़ेगा. Then only you could define its value. Alright? So in this chapter, we will learn कि हम कैसे length, weight, capacity, time, टेम्परेचर इन सभी डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड यूनिट्स इन अवर लाइफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेजरमेंट ऑफ लेंथ. सो लेंथ क्या होता है? इट इज अ मेजर हाउ लॉन्ग और शॉर्ट एन ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट कितना लॉन्ग या शॉर्ट है, इसके मेजर को कहा जाता है लेंथ. अर्लियर पहले टाइम पे द पीपल यूज हैंड स्पैन. पहले लोग क्या करते थे? हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन, इन सभी चीजों का यूज करते थे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग की लेंथ को मेजर करने के लिए. राइट? यू कैन सी दिस इज व्हाट दे हैव गिवन यू. ये आपकी लॉन्गेस्ट टो की टिप है एंड ये हमारी टिप है हील की. ठीक है. एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता था, ठीक है, इसे कहा जाता था व्हाट? फुट स्पैन मेजरमेंट. ऑलराइट. ये आपका हैंड स्पैन मेजरमेंट है, यानी कि जो लिटिल फिंगर और थंब है इसके बीच का डिस्टेंस, इसे हैंड स्पैन कहा जाता था. देन हमारे आर्म के मेजरमेंट को कहा जाता था क्यूबिट मेजरमेंट. सो लाइक दिस हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करते थे इन द अर्लियर टाइम टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. However, the length of these body parts, लेकिन स्टूडेंट्स इन बॉडी पार्ट्स की जो लेंथ होती है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. इसीलिए वी कैन नॉट रियली डिपेंड ऑन दिस. हम
इन मेजरमेंट को रिलायबल नहीं मान सकते, हम इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज ये आपकी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ऑफ मेजरिंग लेंथ. ऑलराइट, नाउ देयर आर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स. लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है. सो द वेरी स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ वी हैव इज मीटर. ठीक है, लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे आप मीटर बोलते हो. एंड इफ देयर इज शॉर्टर लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ शॉर्ट है तो आप उसे सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं. एंड अगर बहुत ज्यादा लॉन्गर लेंथ है तो इट कुड बी मेजर्ड इन मीटर. और if the distance between two places is to be measured, then it will be measured in kilometers. Means shorter length के लिए आप सेंटीमीटर यूज करोगे, थोड़ी लॉन्ग लेंथ है तो उसके लिए मीटर यूज करेंगे. एंड कोई भी दो पर्टिकुलर प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस आपको अगर मेजर करना है, सो फॉर दैट वी विल यूज द यूनिट दैट इज किलोमीटर. राइट, चलो. सो देन वी हैव सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, आज के टाइम पे हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनका यूज करके हम लेंथ को मेजर करते हैं. लाइक वी हैव रूलर, इंच टेप, मीटर स्केल. ऑलराइट, you can see this is the ruler and this is your measuring tape. Amazing fact, the tallest building in the world, सबसे tallest building पूरे वर्ल्ड में जो है वो कहाँ है? दुबई में है. इसका नेम है बुर्ज खलीफा. ऑलराइट, चलो. Now next we will learn the measurement of weight. अब कैसे weight को measure किया जाता है? तो weight क्या बताता है? That how heavy or light an object is. तो length तो बताती थी कि कितना कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितना शॉर्ट या लॉन्ग है, लेकिन weight बताता है कोई ऑब्जेक्ट कितना heavy या light है, हल्का या भारी है. ठीक है, तो weight of small object, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो weight होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अ लीफ, एक पत्ती का जो weight होगा उसे आप मिलीग्राम में मेजर करते हो. एंड जो लार्जर यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं सच एज एन एप्पल, इसका जो वेट होगा उसे मेजर किया जाएगा ग्राम्स में. तो ये आपकी यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स. ठीक है, फिर उससे भी अगर लार्जर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उससे भी बड़े ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल द वेट ऑफ अ पर्सन, किसी एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन का जो वेट है उसे मेजर किया जाएगा बाय यूजिंग द यूनिट नोन एज किलोग्राम्स. देन वी हैव सम डिवाइसेस. अगेन वेट मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि कॉमन मेजरिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग बैलेंस. यू कैन सी ये आपका मेजरिंग बैलेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग बैलेंस होता है. एंड ये ग्रीन ग्लॉसेस जो यूज करते हैं वो वाला वेइंग बैलेंस है. आई होप यू मस्ट हैव सीन ऑल ऑफ दीज. ऑलराइट, नाउ अगेन एन अमेजिंग फैक्ट दैट ISO क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. एंड देन वी हैव FPO ऑल्सो. FPO है फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर. सो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं? ये एश्योर करते हैं क्या कंज्यूमर्स को कि केवल एक्चुअल मेजरमेंट्स को ही किसी भी पैक्ड फूड स्टफ पे प्रिंट किया जाएगा दैट यू बाय फ्रॉम द मार्केट. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव मेजरिंग कैपेसिटी. सो कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड. किसी भी कंटेनर में कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड होल्ड किया जा सकता है, दैट इज नोन एज कैपेसिटी. एंड कैपेसिटी को मेजर करने की जो यूनिट्स हैं दैट इज लीटर एंड मिलीलीटर. ये कुछ कॉमनली यूज होने वाली यूनिट्स हैं. ऑलराइट, एंड यू कैन सी दिस इज अ मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज योर मेजरिंग बीकर. ये आपकी कॉमन स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं जिन्हें हम कैपेसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट मेजरिंग टाइम. सो एज वी ऑल नो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. हम अपने सारे वर्क करते हैं एक स्केड्यूल टाइम पर. ऑलराइट, नाउ कैन यू नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स यू द एग्जैक्ट टाइम? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको एग्जैक्ट टाइम बताता है. सो दैट इज योर वॉच और क्लॉक. राइट, चलो. सो वॉचेस एंड क्लॉक टेल अस द टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. आप ये देख सकते हो, ये आपकी वॉल क्लॉक है जो आप वॉल पे यूजुअली हैंग करते हैं. एंड ये एक रिस्ट वॉच है. सो इस तरीके से वॉचेस एंड क्लॉक्स होती हैं जो हमें टाइम बताती हैं इन आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स. अ लार्जर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एक टाइम का जो लार्जर ड्यूरेशन होता है उसे आप डे कहते हैं. कितने? 24 आवर्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर डे. सिंगल डे में 24 आवर्स होते हैं. 365 डेज टुगेदर मेक अ ईयर. इसके बाद 365 डेज मिलाकर एक ईयर कंप्लीट होता है. देन डेज, वीक एंड मंथ्स ये आपके कैलेंडर्स पे डिस्प्ले होते हैं. एंड लीप ईयर, जो लीप ईयर होगा उसमें कितने? 366 डेज होते हैं. नॉर्मल ईयर में 365 एंड लीप ईयर में 366 डेज.
Again an amazing fact that clock क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है which shows the time. एंड वॉच क्या है? वॉच एक स्मॉल क्लॉक होती है जिसे हम अपनी रिस्ट पे वियर करते हैं. राइट. नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम, अब टाइम की यूनिट्स गिवन है. सो स्टूडेंट्स द स्टैंडर्ड यूनिट, टाइम की जो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज सेकेंड. एंड उसके अलावा भी वी हैव सम अदर यूनिट्स लाइक मिनट्स एंड आवर्स. राइट. दीज यूनिट्स, ये जो यूनिट्स है ये आपस में रिलेटेड होती है टू ईच अदर इन द फॉलोइंग वे. हाउ? सी 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स मिलके क्या बनता है? 1 मिनट बनता है. 60 मिनट्स मिलके क्या बनता है? 1 आवर. ऑल राइट. नाउ दे हैव गिवन यू द डिस्ट्रीब्यूशन, sorry, they have given you the table of time conversion also. See, that's the key. They have given you 1000 milliseconds equals to how many? 1 second. Then 60 seconds equals to 1 minute, 60 minutes equals to 1 hour, 24 hours equals to 1 day, 7 days equals to 1 week. ठीक है? And 4 weeks in a month. एक month में 4 weeks होते हैं. 12 months मिलके 1 year बनाते हैं. 365 days is also equals to 1 year only. ठीक है? Then 10 years equals to 1 decade. 10 decades equals to 1 century. 100 years equals to 1 century. And 1000 years equals to 1 millennium. You have to learn this table. All right. Now, next topic which we have is that is measurement of time. So, when you suffer from a fever, students, जब भी आप fever से suffer करते हैं तो डॉक्टर एक थर्मामीटर नाम की डिवाइस का यूज करते हैं आपके फीवर को मेजर करने के लिए, that how much fever और what is the temperature of your body at that time. ठीक है? सो एक्चुअल में ये जो थर्मामीटर है वो मेजर क्या कर रहा है? थर्मामीटर आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर रहा है. एंड व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग इज. ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट या थिंग कितना हॉट या कितना कोल्ड है, इसे मेजर करना या इसकी क्वांटिटी को, इसके मेजरमेंट को कहा जाता है टेम्परेचर. राइट. चलो, अब टेम्परेचर आपके सेल्सियस स्केल पे भी मेजर किया जाता है एंड फ़ारेनहाइट स्केल पे भी किया जा सकता है. दे हैव गिवन यू, दिस इज अ डिजिटल थर्मामीटर जो बेसिकली हम यूज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. ऑलराइट. नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. सो अर्लियर पीपल यूज, सेम कि पहले लोग किसका यूज करते थे? हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन का यूज करते थे टू मेजर द लेंथ ऑफ द थिंग्स. सेकेंडली उसके बाद रूलर, इंच टेप एंड मीटर स्केल अब हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज हम करते हैं टू मेजर द लेंथ. थर्ड, वेट. वेट क्या बताता है कि हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज. मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम यूनिट्स हैं वेट मेजर करने के लिए. व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ लिक्विड. ठीक है, एक कंटेनर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड होल्ड किया जा सकता है, दैट इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट. एंड टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? दैट इज सेकेंड. ऑलराइट. So the chapter is completed and I hope now you must have understood the concept of measurement of different quantities in our life. Alright, so let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to all.